پولٹری مصنوعات عوام کی پہنچ سے دور، مرغی کا گوشت 15 روپے مہنگا، قیمت 501 سے بڑھ کر 516 روپے کلو ہو گئی۔ فارمی انڈوں کے نرخ بھی 2 روپے بڑھ گئے، فی درجن قیمت 297 روپے تک پہنچ گئی۔ شہری کہتے ہیں کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں زین علی سے۔ زین بتائیے گا۔ ضروری اشیاء کی جو قیمتیں ہیں ان میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ آج بھی برائلر گوشت کی قیمت میں 15 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس اضافے کے بعد جو برائلر گوشت ہے وہ 516 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ شہری جو ہے اس بڑھتی مہنگائی سے شدید پریشان ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ہم سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا، برائلر گوشت آج بھی بڑھ گیا ہے۔ سر جو مہنگائی ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتی ہماری حکومت۔ ہمارا جینا دوبر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ صبح 10 بجے سے لے کر رات 2 بجے تک کام کر رہے ہیں، کس وجہ سے مہنگائی بہت زیادہ، گزارا نہیں ہو رہا ہمارا۔ جو گیس ہے، پیٹرول ہے، دن بہ دن ان کے ریٹ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ انڈا ہو گیا، برائلر وغیرہ ہو گیا، یہ تو ہماری پہنچ سے تقریباً دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی برائلر کلو جو ہم 200 روپے میں، 150 روپے، 200 روپے میں کلو لے کر جا رہے تھے، جو اب اس وقت میں نے خود پرچیز کیا ہے 550 روپے کلو صافی گوشت ہے، 550 روپے کلو میں خود لے کر آ رہا ہوں ابھی۔ تو ہمارا سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں، کیا کھائیں۔ بہتر حال یہی ہے، یا تو پھر یہ جو ہمارا ملک ہے اس کو ڈیفالٹ تو ہو چکا ہے، یا اس کو بیچ دیں یا ایٹم بم گرا دیں۔ جی بالکل، آپ نے شہری کی بات سنی۔ ان کا کہنا تھا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ان کا جینا جو ہے وہ محال کر دیا ہے، جبکہ مارکیٹ میں ایک انڈا جو ہے وہ 25 روپے سے 26 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ جی شکریہ۔ ڈالر کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا گراف بھی بلند تر ہونے لگا۔ درآمدی سبزیوں کی خریداری بھی عوام کے لیے آسان نہ رہی۔ سبز مسالہ جات کے دام عوام کے جیبوں پر بھاری پڑنے لگے۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 5 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ خریدار کہتے ہیں مہنگائی کی چکی میں پس کر رہ گئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ عبدالقادر، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ آج بالکل، آج سبزیوں کے حوالے سے بات کی جائے، جو روزمرہ استعمال کی سبزیاں جس میں پیاز، ٹماٹر، لہسن اور ادرک شامل ہیں، تو ان کی قیمتوں میں غیر معمولی طور پر اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ عوامی قوت خرید سے قیمتیں جو ہیں باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ ڈالر کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے درآمدی سبزیاں جس میں پیاز، لہسن اور ادرک شامل ہیں، ان کی قیمتیں عوامی قوت خرید سے باہر ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ صارف موجود ہیں، انہی سے بات کرتے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا کہ پیاز، ٹماٹر، لہسن، ادرک جو ہے وہ تو سستا نہیں ہو رہا، ڈالر مہنگا ہونے سے ان کی قیمتیں مزید تیز ہو گئی۔ سر میں جب خریدتا ہوں مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جب میری وائف خریدتی ہے اس کو تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے پاس ڈالر ہے، میرے پاس روپے ہیں، اور روپے کی وجہ سے میں ٹینشن میں رہتا ہوں۔ یہ خوش ہو رہی ہے کیونکہ اس کے ڈالر سے زیادہ چیزیں آنی شروع ہو گئی ہیں اور میرے روپے سے جو ہے نیچے گھستا جا رہا ہے۔ ابھی کیا کریں، یہ حالات تو ملک کو اپنا، جب تک حکومت سیٹیبل نہیں ہوتی، جب تک اچھی گورنمنٹ نہیں آتی، کوئی اچھے لوگ نہیں آتے، ہمیں اچھے لوگ میسر نہیں آئیں گے، یہ حالات تو ایسے رہیں گے۔ جی بالکل، آپ نے جو ہے صارف کی گفتگو سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈالر کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ان سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ دیگر سبزیاں جو ہیں وہ بھی دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، ڈالر کی آؤٹ آف کنٹرول پرواز نے سونے کی قیمتوں کو بھی پر لگا دیے۔ سونے کی ذخیرہ اندوزی کے بڑھتے ہوئے رجحان کے باعث صورتحال مزید خراب ہے۔ سونے کی قیمت میں اضافے کے بعد گولڈ مارکیٹ ویران ہو گئی۔ لاہور سے کی رپورٹ دیکھیے۔ یہ لاہور کی چند ایک بڑی گولڈ مارکیٹس کے مناظر ہیں، جہاں مختلف دکانوں میں آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی چمک دمک کے ساتھ زیورات تو موجود ہیں، لیکن خریدار دور دور تک نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ ان ویرانیوں کی وجہ ملک کے بدترین معاشی حالات اور ڈالر کی اونچی پرواز بنی ہے۔ گزشتہ صرف 10 روز کے دوران 24 کیرٹ سونے کے نرخ 30,000 روپے اضافے کے بعد 2,11,000 روپے فی تولہ تک جا پہنچے ہیں۔ ڈالر اور جو گولڈ ہے دونوں پیرلل چلتے ہیں ایک دوسرے کے۔ جب تک ڈالر کا کوئی کنٹرول نہیں نہ ہوگا، گولڈ بھی کنٹرول میں نہیں آ سکے گا۔ جو انویسٹر ہے وہ ہمارے گولڈ کی طرف آ چکا ہے، اب وہ بجائے پراپرٹی لینے کی بجائے وہ گولڈ کو ہولڈ کرنا چاہ رہا ہے، گولڈ کو بائی کرنا چاہ رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی ڈیمانڈ بڑھی ہوئی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت سپلائی بھی کم ہے، ٹوٹل امپورٹ بند ہے اس وقت گولڈ کی۔ 22 اور 21 کیرٹ سونے کے فی تولہ نرخوں میں بھی غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 22 کیرٹ کے سونے کے نرخ 1,93,000 اور 21 کیرٹ سونے کے نرخ 1,83,000 روپے فی تولہ تک پہنچ چکے ہیں۔ جیولری کی تیاری میں زیادہ تر 22 اور 21 کیرٹ کا سونا ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن اب ان کے نرخوں میں ہونے والے بے تحاشا اضافے کے باعث مارکیٹوں سے خریدار جیسے غائب ہی ہو گئے ہیں۔ گولڈ نا بالکل ایک سب سے یعنی کہ اضافی چیز ہے زندگی کی ضروریات سے ہٹ کے، تو لوگ یہاں پہ زندگی کی ضروریات پوری کرنے میں سمجھے ان کی موت واقع ہو چکی ہے۔ یہاں جولری والا کام تو بالکل سمجھے قبریں کھد گئی ہیں جولری والوں کی، تو اتنا برا حال ہے کہ کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا ہم سے
کہ بھائی جان آپ یہاں پہ کرنے کیا بیٹھے. मार्केट फोर्सेस के मुताबिक सोने के निर्खों में मजीद इजाफे के भी कवी इम्कानात मौजूद हैं। हमारी तो अब हर हवाले से कुछ ऐसी ही सूरत हाल हो चुकी है कि सर ढांपते हैं तो पाँव नंगे हो जाते हैं, पाँव ढांपते हैं तो सर से चादर सिरक जाती है। और सितम बालाए सितम तो ये भी है कि हालात में फ़िलहाल दूर दूर तक बेहतरी की कोई उम्मीद भी दिखाई नहीं दे रही। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। खबर है कि नेपरा ने बिजली ₹2.32 फी यूनिट सस्ती कर दी। सारिफीन को 18 अरब 70 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। बिजली सारिफीन को फरवरी के बिलों में रिलीफ मिलेगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फ़हद अमीन से। फ़हद अमीन, अपडेट कीजिएगा। की चक्की में फंसी हुई आवाम को थोड़ा सा जो है वो सुख का सांस मिला है कि नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹2.32 फी यूनिट जो है वो कमी कर दी है। सार्फिन को 18 अरब 70 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा और बिजली सार्फिन के जो है वो फरवरी के बिलों में ये रिलीफ शामिल किया जाएगा। कमी का इतलाक जो है वो लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर जो है वो नहीं होगा। नेपरा अथॉरिटी की जानिब से इस हवाले से जो है वो फैसला जारी कर दिया गया है, मगर तफसीली फैसला जो है वो बाद में जारी किया जाएगा। जी ठीक है फ़हद अमीन, आपका शुक्रिया। डॉलर की कदर में 3 रुपए की कमी। इंटर बैंक का डॉलर रेट ₹266.60 पर आके अब ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपए की कमी आई। ओपन मार्केट में डॉलर 272 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जाहिद आबिद से जानते हैं। जाहिद, बताइएगा। फुल करेंसी मार्केट में गुज़श्ता 3 रोज़ में डॉलर की कदर में 40 रुपए का इजाफा देखा गया था। ताहम आज भी बैंकारी औकात इस वक्त खुले उसमें डॉलर की कदर में इजाफा देखा गया, लेकिन इसके बाद अब तक डॉलर की कदर में कमी देखी जा रही है और इस वक्त तक डॉलर की कदर में 3 रुपए कमी हो चुकी है, जिसके बाद इंटरबैंक डॉलर रेट 266 रुपए 50 पैसे तक आ चुका है। जबकि ओपन मार्केट में यही सूरत नजर आ रही है। ओपन मार्केट में 273 से 274 रुपए तक मार्केट डॉलर दस्तयाब है। मार्केट ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता चंद रोज़ से गैर मामूली तेज़ी थी, उसकी वजह से मार्केट में एक गैर यकीनी कैफियत है, जिसकी वजह से इस वक्त ज़्यादातर लोग डॉलर खरीदने से गुरेज कर रहे हैं, जिसके बायस मार्केट में डॉलर की खरीदारी कम हो रही है और आज की कमी होने वाली इसी सिलसिले की कड़ी है। मार्केट ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में IMF के साथ भी आइंदा चंद रोज़ में मुज़ाकरा शुरू होने वाले हैं, जिसके बाद ज़र मुबादला के ज़खायर में कदर बेहतरी की तवक्को की जा रही है, जिसकी वजह से मार्केट में डॉलर को डीकैप करने की जो पॉलिसी अपनाई गई थी उसके साथ अब सामने आने लगे हैं और डॉलर रेट मार्केट फोर्सेस के मुताबिक तय हो रहा है और हुकूमत या स्टेट बैंक इसे अब रोकने की कोशिश नहीं कर रही है और आज की कमी इसी सिलसिले में देखी जा रही है। इस वक्त तक मार्केट में मनफी और मुस्बत रुझान दोनों मौजूद हैं, ताहम मजमूई तौर पर रुपए की कदर को बहुत ज़्यादा संभाला मिलने की अभी उम्मीद जाहिर नहीं की जा रही जब तक IMF से नया मामला तय नहीं पाते। ठीक है, शुक्रिया जाहिद आबिद, आपने तफसीलन अपडेट किया। अब आपको बताएं कि ASI को भर्ती न करने के खिलाफ केस की समाअत हुई है। हाई कोर्ट ने IG पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला और CCPO को 14 फरवरी को तलब कर लिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर फ्री कैन को पेश होने का हुक्म दे दिया है। आपको बता रहे हैं ASI को भर्ती न करने के खिलाफ केस की समाअत हाई कोर्ट ने IG पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला और CCPO को 14 फरवरी को तलब कर लिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर फ्री कैन को पेश होने का हुक्म दिया है। आपको अपडेट किया जा रहा है। आपको समाअत का अहवाल बताएं कि हाई कोर्ट ने IG पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला और CCPO को 14 फरवरी को तलब कर लिया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर फ्री कैन को पेश होने का हुक्म दे दिया। लाहौर बार ने सानहा पेशावर के खिलाफ मातहत अदालतों में हड़ताल का ऐलान कर दिया। सदर लाहौर बार राना इंतज़ार की पेशावर धमाके की शदीद मजम्मत कहते हैं वकला बरादरी शोहदा के अहले खाना के साथ है। आपको अपडेट किया जा रहा है। लाहौर बार ने सानहा पेशावर के खिलाफ मातहत अदालतों में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सदर लाहौर बार राना इंतज़ार की पेशावर धमाके की शदीद मजम्मत कहते हैं वकला बरादरी शोहदा के अहले खाना के साथ है। इसी पे बात करते हैं नुमान नूर से। नुमान, बताएगा क्या तफसीलात हैं? लाहौर बार एसोसिएशन ने जो है वो सानहा पेशावर के बाद हड़ताल की कॉल दे दी है और इस वक्त वकला अदालतों में पेश नहीं होते। इस वाले से सदर लाहौर बार राना इंतज़ार ने वकला से अपील की है कि शोहदा और ये जो अफसोसनाक वाक़े जो अफराद शहीद हुए, जो अफराद इस दुनिया से रुखसत हुए, उनके साथ खड़े हैं और वकला बरादरी शोहदा की फैमिली के साथ है। जबकि इस वाक़े की शदीद अल्फाज में सदर लाहौर बार ने मजम्मत भी की है और वकला से सदा की है कि वकला अदालतों में पेश ना हों। जबकि लाहौर बार एसोसिएशन की
ہڑتال کی کال پر جو ہے وکلا عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے ہیں، اور جو مقدمات زیر سماعت ہیں ان میں اگلی تاریخیں دی جا رہی ہیں، اور عدالت میں جو مقدمات زیر سماعت ہیں ان میں اگلی تاریخیں دی جا رہی ہیں، اور جو وکلا ہیں وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے ہیں۔ شکریہ نمان نور۔ چودھری وجاہت حسین کی درخواست پر سماعت۔ ہائی کورٹ نے وجاہت حسین کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل طلب کر لی۔ عدالت میں کوئی بھی لا آفیسر موجود نہ ہونے پر عدالت کا اظہار ناراضگی کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ چودھری وجاہت حسین کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ ہائی کورٹ نے وجاہت حسین کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل طلب کر لی۔ عدالت میں کوئی بھی لا آفیسر موجود نہ ہونے پر عدالت کا اظہار ناراضگی کیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، چودھری وجاہت حسین کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ ہائی کورٹ نے وجاہت حسین کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل طلب کر لی۔ عدالت میں کوئی بھی لا آفیسر موجود نہ ہونے پر عدالت کا اظہار ناراضگی۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن پہنچ گئی۔ مریم نواز آج اپنے دفتر میں اہم ملاقاتیں کریں گی۔ مریم نواز کل سے شروع ہونے والے اپنے عوامی دوروں کے پروگرام کو بھی حتمی شکل دیں گی۔ مزید تفصیلات سلمان طارق سے جانتے ہیں۔ سلمان بتائیے گا۔ مسلم زون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن پہنچی ہیں جاتیندہ سے کچھ دیر پہلے، اور آج بھی ماڈل ٹاؤن میں اپنے دفتر میں وہ اہم ملاقاتیں کریں گی پارٹی رہنماؤں سے، عہدیداران سے، اور اپنے جو شیڈول ہے جو ان کا جاری کیا گیا ہے گزشتہ روز، جس میں وہ 2 ماہ تک تقریباً ملک کے مختلف شہروں میں ورکر کنونشن میں شریک ہوں گی اور خطاب کریں گی، اس سلسلے سے بھی اپنے اس شیڈول کو حتمی شکل دے گی۔ اور کل 1 فروری کو انہوں نے بہاولپور روانہ ہونا ہے ورکر کنونشن میں شرکت کے لیے۔ اس سلسلے میں بھی آج اپنے دفتر میں جو ہے وہ بہت پارٹی عہدیداران سے مشاورت بھی کی جائے گی اور اپنے شیڈول کو حتمی شکل بھی دی جائے گی۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اس ملاقات میں کون کون رہنماؤں سے ان کی ملاقاتیں شیڈول ہیں؟ جی، پارٹی سیکریٹریٹ میں مریم نواز اپنے دفتر میں پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں، مرکزی رہنما، ان سے ملاقاتیں کریں گے، اور ساتھ میں جو مختلف ونگز ہیں پارٹی کے ان سے بھی مشاورت ہوگی۔ جیسے گزشتہ روز سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ ایک تفصیلی نشست مریم نواز نے کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ خواتین ونگ سے بھی ایک نشست رکھی تھی، جس کے اندر انہوں نے سوشل میڈیا ٹیم کو بھی کچھ ہدایات جاری کی تھی کہ جی پارٹی کے موقف کو، پارٹی کی پالیسی کو سوشل میڈیا پہ کس طریقے سے جو ہے وہ کس انداز سے پیش کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین ونگ کو بھی متحرک کرنے کے حوالے سے جو صدر ہیں خواتین ونگ کی شائستہ پرویز ملک، ان کو جو ہے وہ ہدایات جاری کی تھی۔ آج بھی مریم نواز جو ہے وہ مصروف دن سیاسی گزاریں گی پارٹی سیکریٹریٹ میں اپنے دفتر میں، جس میں وہ پارٹی کے مختلف عہدیداران کے ساتھ ساتھ جو مختلف ونگز ہیں ان سے بھی جو ہے وہ ملاقاتیں کریں گی اور ان کو پارٹی پالیسی کے حوالے سے ہدایات جاری کریں گی۔ جی شکریہ سلمان طارق۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان بھی آج سینئر رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پنجاب اور کے پی میں الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے مشاورت ہوگی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں لیاقت علی سے۔ لیاقت علی بتائیے گا۔ بالکل، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے جو ہے پنجاب اور کے پی میں انتخابی امیدواروں کو فائنل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے ٹکٹوں کی تقسیم پر ان کی ڈویژن کے کوآرڈینیٹرز جو ہیں ان سے ملاقاتیں شروع کرتی ہیں۔ آج نارتھ پنجاب کے جو ڈویژنل کوآرڈینیٹرز ہیں ان کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور گزشتہ روز جو ہے وہ ویسٹ پنجاب کا اجلاس ہوا تھا، تو بنیادی طور پر یہ کوآرڈینیٹرز جو ہیں وہ ہر نشست پر اپنی 5 جو پارٹی رہنما ہیں ان کے نام تجویز کر رہے ہیں۔ ابتدائی فرشتے جو ہیں انہیں مرکزی پارلیمانی بورڈ میں بھیجا جائے گا، اور پھر عمران خان جو ہے وہ مرکزی پارلیمانی بورڈ کی صدارت کریں گے، جہاں پر ٹکٹوں کے حتمی فیصلے ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے لیاقت علی، آپ کا شکریہ۔ وزیر آباد حملہ کیس کی تحقیقات کے لیے نئی جے آئی ٹی کی تشکیل کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے درخواست پر سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو دلائل دینے کی ہدایت کر دی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے بنائی گئی نئی جے آئی ٹی کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں محمد اشفاق سے۔ اشفاق بتائیے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان وزیر آباد حملہ کیس کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی نئی جے آئی ٹی کی تشکیل کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل اظہر صدیق کو درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل دینے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس علی باقر نقوی نے کہا کہ درخواست گزار کس طرح متاثرہ فریق ہے، اس حوالے سے بھی آئندہ سماعت پر دلائل دیے جائیں، اور عدالت کے روبرو ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے
वफाकी हुकूमत की जानिब से बनाई गई नई JIT को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। शुक्रिया मोहम्मद इशफाक। इस मुल्क में लफ्ज़ मुंशी कहना बगावत बन गया है। उनकी ख्वाहिश है इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए। फारूक हबीब की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू, बोले इलेक्शन 90 रोज़ में नहीं होते तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। पूरे पाकिस्तान की नजरें अदलिया की जानिब है। जब से रजीम चेंज साजिश हुई पिछले 9 माह से, जो फ्री स्पीच है यानी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो एक जुर्म बन गया है। यानी कि अगर आप इनको बात करें, कानून की, आइन की, हाकमियत की बात करें, तो आपको गिरफ्तार पहले किया जाता है। गिरफ्तार करके जो आपकी बुनियादी इंसानी हकूक़ है उसकी वायलेशंस की जाती है। इस मुल्क के अंदर अब मुंशी लफ्ज़ कहना भी जो है वो बगावत बन गया है। आप मुंशी भी नहीं कह सकते। बगैर नंबर प्लेट वीगो डाले को रोका है, लेकिन मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती है कि मैंने 50 तरबियत याफ्ता कमांडो, उनके एस्कॉर्ट के अंदर लोग थे, उनके साथ डकैती भी कर ली, उनकी वर्दियां भी फाड़ दी, वायरलेस भी छीन के लेके चले गए। जो फवाद चौधरी की कमसन बच्चियां हैं वो अपने वालिद से मुलाकात नहीं कर सकती। छोटी छोटी बच्चियां आप लोगों ने सब ने देखी हैं, उनकी तस्वीरें जो है वो सामने आ गई। मुझे पता है कि वो अपने वालिद के साथ जो है कितनी ज़्यादा जो है अटैच है और फवाद उनके साथ कितना ज़्यादा जो है वो अटैच है, लेकिन उनको जेल में जुडिशियल रिमांड के दौरान भी मिलने की इजाज़त नहीं है, वकील को मिलने की इजाज़त नहीं है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बगैर इतला पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का दौरा, हस्पताल इंतज़ामिया भी दौरे से लाइल्म रही। निगरान वज़ीर आला ने मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया और मरीज़ों की अयादत की। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मरीज़ों से इलाज मुआलजे की फराहम करदा सहूलतों के बारे में पूछा। बाज़ मरीज़ों ने वज़ीर आला से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो मुकम्मल सेहतयाब हैं और घर जाना चाहते हैं। निगरान वज़ीर आला ने MS से सेहतयाब होने वाले मरीज़ों की फहरिस्त तलब कर ली। MS ने ब्रीफ किया कि तकरीबन 250 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं, लेकिन घर वाले उन्हें लेकर नहीं जाते। बाज़ फैमिलीज़ ने अपने घर के एड्रेस भी गलत दर्ज कराए हैं, जिस पर मोहसिन नकवी का कहना था कि यह अफसोस का मकाम है कि खूनी रिश्तों ने भी अपने प्यारों को इस हस्पताल में अकेला छोड़ा हुआ है। इस मौके पर CCPO लाहौर बिलाल किमियाना भी मौजूद थे। टिकटों की तकसीम का मामला, इमरान खान जल्द पंजाब और KPK में इंतखाबी उम्मीदवारों को फाइनल करने का फैसला। चेयरमैन PTI ने टिकटों की तकसीम पर तमाम डिवीज़न के कोऑर्डिनेटर से मुलाकातें शुरू कर दी हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं लियाकत अली से। लियाकत अली, आगाह कीजिएगा। लियाकत से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि इंतखाबी टिकटों की तकसीम का ये मामला है। इमरान खान का जल्द पंजाब और KPK में इंतखाबी उम्मीदवारों को फाइनल करने का फैसला मुकम्मल कर लिया जाएगा। चेयरमैन PTI ने टिकटों की तकसीम पर तमाम डिवीज़न्स के कोऑर्डिनेटर से मुलाकातें शुरू कर दी हैं। आपको अपडेट किया जा रहा है, इंतखाबी टिकटों की तकसीम का ये मामला है। इमरान खान जल्द पंजाब और KPK में इंतखाबी उम्मीदवारों को फाइनल कर लेंगे। चेयरमैन PTI ने टिकटों की तकसीम पर तमाम डिवीज़न्स के कोऑर्डिनेटर से मुलाकातें शुरू कर दी हैं। आपको अपडेट किया जा रहा है, टिकटों की तकसीम का मामला, इमरान खान का जल्द पंजाब और KPK में इंतखाबी उम्मीदवारों को फाइनल करने का फैसला। अब आपको बताएं कि पंजाब के DPOs के तबादलों की तैयारी, साबिका हुकूमत में तैनात होने वाले मुबैना सिफारिशी अफसरान को ओहदे से हटाने का फैसला किया गया है। कौन सा DPO फारिग और कौन सा तैनात होगा, इस हवाले से लाहौर न्यूज़ ने फहरिस्त हासिल कर ली है और फहरिस्त सामने भी ले आया है। आपको अपडेट किया जा रहा है, पंजाब के DPOs के तबादलों की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस ने RPOs और लोअर पुलिस में कार विचार के बाद अब जो है वो DPOs के तबादलों की जो है वो तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। साबका हुकूमत में तैनात होने वाले मुबैना सिफारिशी अफसरान को ओहदे से हटाए जाने का अमकान है। अब जो है वो नए अफसरान जो है वो तैनात किए जाएंगे। इस हवाले से जो फहरिस्त है वो लाहौर न्यूज़ सामने ले आया है। सबका दौर में पाकपतन और मियांवाली से ज़बरदस्ती सुबदर होने वाले अफसर को जो है अहम जिले में तैनात किया जा रहा है। रिजवान गोंदल जो को DPO रिजवान गोंदल जो कि इससे पहले DPO पाकपतन और मियांवाली रह चुके हैं, उनको जो है वो जैसे ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई उसको सुबह बदल किया गया था। अब जो है दोबारा इसको रिजवान गोंदल को DPO गुजरात लगाए जाने का इम्कान है। इसके अलावा फैसल शहजाद को DPO साहिबा तैनात किए जाने की तजवीज़ है।
हसन इकबाल जो को डीपीओ रिंगर का तैनात किए जाने की तजवीज़ है। इसके अलावा मंसूर कमर को डीपीओ भावनगर तैनात किए जाने की तजवीज़ है। और इसके अलावा हमारा असर जो कि डीपीओ भावनगर और डीपीओ सुबोधा तैनात रह चुकी हैं, इनको दोबारा फिर जो है वो डीपीओ लगाने जाने का इम्कान है और डीपीओ अटक लगाए जाने की तजवीज़ है। शासन नदीम जो है इससे पहले डीपीओ बखर रह चुकी हैं, इनको डीपीओ खुशाब लगाए जाने की तजवीज़ है। इसके अलावा इसका खेरा जो कि डीपीओ भावनगर तैनात है, इनकी जो प्रपोजल बनी है वो डीपीओ खानवाल इनको लगाए जाने की तजवीज़ है। मोहम्मद नबी जो कि डीपीओ मियां वाली तैनात हैं, इनको डीपीओ बालपुर लगाए जाने की तजवीज़ है। इसके अलावा राना शेर महमूद को डीपीओ व्याड़ी लगाए जाने की जो है वो तजवीज़ है। फराज अहमद को डीपीओ लोधरा लगाए जाने का जो है वो प्रपोजल भिजवाई गई है। और उसके अलावा मोहम्मद फैसल कामरान को डीपीओ सरगोदा लगाए जाने की तजवीज़ है। और कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद को डीपीओ हाफिजाबाद लगाए जाने की तजवीज़ है। सरदार गयास गुल जो कि डीपीओ जंग के साबका हुकूमत के अदवार में चंद रोज पहले इनकी खिदमत वापस जो है पंजाब में जो है वो की गई है, इनको जो है वो डीपीओ शेखुपुरा बड़ा जिला है, वहाँ पर इनको तैनात किया जाएगा। सैयद हसनैन अदर जो इससे पहले एसएसपी इन्वेस्टिगेशन तैनात थे, 2 रोज पहले इनका तबादला जो है वो आईजी ऑफिस में किया गया, इनको भी जो है वो डीपीओ कसूर लगाए जाने की तजवीज़ है। एहसानुल्लाह चौहान जो है इस वक्त जो है वो ईटी मिलिटेंट तैनात हैं, इनको जो है वो डीपीओ डेरा गाजी का तैनात किया जाएगा। इसके अलावा सैयद अली जो कि एसएसपी मुल्तान तैनात हैं, इनको जो है वो डीपीओ बखर तैनात किए जाने का इम्कान है। फैसल गुलजार को डीपीओ मुजफ्फरगढ़ तैनात किए जाने का इम्कान है। फैसल गुलजार CIA में तैनात हैं। इसके अलावा कामरान मुमताज़ को डीपीओ मियां वाली तैनात किए जाने का इम्कान है। जनारा असफर जो कि इनको डीपीओ मेरी तैनात किए जाने का इम्कान है। इस जो नई तजवीज़ बनी है इसमें 3 खवातीन पुलिस अफसर को डीपीओ तैनात किया जा रहा है। इससे पहले जो है वो कोई भी खवातीन अफसर जो है वो डीपीओ नहीं है। और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अनूश मसूद को 2 रोज पहले तैनात किया गया है। अब इस जो नई तजवीज़ के मुताबिक 3 जो लेडी अफसर हैं, इनको जो है वो डीपीओ तैनात किए जाने की जो है तजवीज़ भिजवाई गई है। अक्कर फरूक जो कि डीपीओ रिंगर का हैं, इनको PSO2 IG पंजाब लगाए जाने की तजवीज़ है। इसके अलावा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अजमल को डीपीओ लिया लगाए जाने की तजवीज़ है। नसीबुल्लाह खां जिनको साबका हुकूमत ने हटा दिया था उधर से, इनको जो है वो निगरान सेटअप जो है वो नई पोस्टिंग दे रहा है। निगरान सेटअप के तजवीज़ के मुताबिक नसीबुल्लाह खां को डीपीओ तो बस शेख सिंह जो है वो तैनात किए जाने का इम्कान है। वज़राइन के मुताबिक चंद घंटों में जो है वो इस ट्रांसफर पोस्टिंग पर अमल दरामद हो जाएगा और इन अफसरान को जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो आईजी ऑफिस से जारी कर दिया जाएगा। और इस वाले से पंजाब पुलिस में डीपीओ के बड़े पैमाने पर जो है वो चंद घंटों में तबादले जो है उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जी, चंद घंटों में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मुदस्सिर हुसैन, आपका। महंगाई की लहर ने यूटिलिटी स्टोर्स को भी लपेट में ले लिया। शहर के मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी नायाब है। सस्ते आटे और दालों की सप्लाई भी मुतासर है। शहरी अशियाए ज़रूरिया बाजार से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स पर हुकूमत की जानब से आवाम को सस्ती शाह फराहम करने का दावा किया जाता है और इसके इक़दामात करने के ऐलानात भी होते हैं। कभी पॉलिसियाँ तब्दील की जाती हैं सार्फिन को अशिया फराहम करने की। अब जो नई पॉलिसी गुज़श्ता चंद हफ्ते से जारी है उसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सार्फिन के लिए रेट कुछ और मुकर्रर किए गए हैं और आम सार्फ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रजिस्टर नहीं है उसे आम मार्केट रेट पर अशिया फराहम की जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद अशिया की फराहमी और दस्तियाबी मसला बनी हुई है। इस वक्त हम स्वामी नगर के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर की भी यही सूरत हाल है। सार्फ हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। चीज़ लेने आते हैं, बस दालें नहीं मिलती, तो घी नहीं मिलता, आटा मिलता है, चीनी मिलती है, तो इसके बाद बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो वो है कि प्रॉब्लम इतनी है, हम आ नहीं सकते, काम करते हैं, फिर मजदूरी मेहनत करते हैं, तो बहुत मुश्किल हुई है। जी बिल्कुल, सार्फिन का यही कहना है कि ये अशिया सस्ती ज़रूर मिल रही हैं लेकिन उनकी दस्तियाबी मसला है जिसकी वजह से बार बार चक्कर लगाना पड़ता है, काम काज छोड़ना पड़ता है। इसी तरह जो आटे का 10 किलो का थैला है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 400 रुपये, जबकि आम सार्फ के लिए 648 रुपये में फराहम किया जा रहा है। चीनी आम सार्फ के लिए 99 रुपये फ़ी किलो, जबकि आम सार्फ के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो सार्फ है उसके लिए 70 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। दालों की सूरत हाल भी इसी किस्म की है। दालों की फराहमी भी कभी कभार होती है क्योंकि आजकल दालें मार्केट में भी महंगी हैं और यूटिलिटी स्टोर पर भी इंतहाई कम मकदार में फराहम की जा रही हैं, जिसकी वजह से सार्फिन यकीनन बहुत सी मुश्किलात का शिकार हैं। बार बार चक्कर लगाना पड़ता है और ख़रीदारी के लिए अपने काम काज छोड़ के स्टोर्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। शुक्रिया जाहिद आबिद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात जारी हैं। 4 रोज़ में सीमेंट की बोरी 50 रुपये तक महंगी।
रेट 1020 रुपये से बढ़कर 1070 रुपये हो गया। सरिया 30 रुपये किलो तक महंगा, कीमत 220 रुपये किलो से बढ़कर 250 रुपये किलो हो गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। अब्दुल कादिर से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात जारी हैं। 4 रोज़ में सीमेंट की बोरी 50 रुपये तक महंगी हो चुकी है। रेट 1020 रुपये से बढ़कर 1070 रुपये का हो गया है। अब्दुल कादिर से बात करते हैं। अब्दुल कादिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, यह मसनूआत के गैर मामूली इजाफात जो है वो अब मार्केट जो है वो होने लगे हैं। तामीरात माल की गैर मामूली जो तेजी देखने को 4 रोज में सीमेंट जो है 50 रुपये फी बोरी तक बढ़ी है। मुख्तलिफ ब्रांड सीमेंट की जो है वो 1000 रुपये। आपको बताएंगे अब्दुल कादिर, आप हमारे साथ ही रहेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात जारी हैं। 4 रोज में सीमेंट की बोरी 50 रुपये तक महंगी हो चुकी है। सरिया भी 30 रुपये किलो तक महंगा कर दिया गया है। सीमेंट की बोरी की बात की जाए तो रेट 1020 रुपये से बढ़कर 1070 रुपये हो गया है और सरिये की कीमत 2020 रुपये किलो से बढ़कर 250 रुपये किलो हो गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, तामीरात का सामान जो है महंगा होने लगा। बड़ी वजह ये कीमतों में इजाफे जो है वो अब तामीर करते आ रहे हैं। इसलिए ब्रांड की सीमेंट की बोरियां ₹1 तक महंगी कर रहे हैं। 1020 रुपये वाली जो है सीमेंट की अब 1070 रुपये की जा रही है। इसी तरह से 2 दिनों में तामीराती सरिया वो भी महंगा हुआ है। कल तामीराती सरिया वो 30 रुपये तक मिल गया 220 किलो बढ़ाकर 200 रुपये 80 किलो कर दी। कल सरिये की 2,50,000 रुपये कर दी गई। स्टैंडर्ड सरिया जो है 30 रुपये तक महंगा गया। मुख्तलिफ का सरिया जो है उसमें पहले 145 रुपये लो थी, अब इसे पर 280 रुपये लो कर दिए गए और उसकी ब्रांडेड सरिया 80 रुपये की सतह पर पहुंच चुका है। से जो सेक्टर जो डीलिंग की जानिब से इख्तियार किया जा रहा है, महंगाई की वजह से पहली राती सेक्टर बुरी असर है। लोगों की कुव्वत खरीद दिन ब दिन तो आ रही है और अब और सरिये की इजाफे की वजह। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। शहरियों को सर्द मौसम में भी लोड शेडिंग से निजात ना मिल सकी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लेस्को को 300 मेगावाट बिजली के शॉर्ट फॉल का सामना है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। मजीद जानते हैं फहद अमीन से। फहद, आगाह कीजिएगा। उसमें भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। अगर तलब रसद की बात की जाए तो आज लेस्को की तलब में कमी हुई है, मगर इसके बावजूद जो है वो लेस्को को उसके कोटे के मुताबिक बिजली जो है वो फराहम नहीं की जा रही। लेस्को का कोटा भी कम कर दिया गया है। लेस्को की बिजली की तलब आज 2500 मेगावाट से ज्यादा है, जबकि एनपीसीसी की जानिब से लेस्को को 2200 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। इस वक्त 300 मेगावाट शॉर्टफॉल के बायस शहर में 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है, मगर शेड्यूल के बरक्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान है। जी शुक्रिया फहद अमीन। गुलाब देवी अंडरपास से मुल्हिका लाहौर ब्रिज की तोसी का मंसूबा। लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबे की 4 डेडलाइन गुजर गईं। लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबे पर लेस्को, रेलवे और एलटीए में डेडलॉक पैदा हो गया। रेलवे ने एलडीए को लेस्को की लाइनें अंडरग्राउंड करने से रोक दिया। तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैनुल आबिदीन, आगाह कीजिएगा। ये फिरोजपुर रोड पर गुलाब देवी के मुकाम पर जो अंडरपास से मुल्हिका लाहौर ब्रिज की तोसी का काम जारी है। इस मंसूबे की 4 डेडलाइन गुजर चुकी हैं, लेकिन डेडलाइन तक भी मुकम्मल ना होने वाले इस मंसूबे में एक बड़ी रुकावट का सामना है। लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबे पर लेस्को, रेलवे और एलडीए में डेडलॉक पैदा हो चुका है। एलडीए ने रेलवे फाटक पर पाइलिंग करने की इजाजत ली। पाइलिंग के दौरान लेस्को की लाइनों की मुंतकली पर डेडलॉक पैदा हो चुका है। रेलवे ने एलडीए को लेस्को की लाइनें अंडरग्राउंड करने से रोक दिया है और लेस्को की यूटिलिटीज की मुंतकली ना होने से मजीद पाइलिंग का काम रुक चुका है। अब मौजूदा सूरत हाल में एलडीए ने दोबारा इजाजत के लिए महकमा रेलवे से रजू कर लिया है। इसमें एलडीए के शोबा इंजीनियरिंग की जानिब से लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबा को मुकम्मल करने में मुबैना तौर पर नाक़िस हिकमत अमली इख्तियार की गई, जिसके सबब ये शहर का अहम मंसूबा बर वक्त मुकम्मल नहीं हो सका। मंसूबे का काम
65% से ज्यादा नहीं हो सका। 27 दिसंबर 2021 को साबिक वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने गुलाब बेदी अंडरपास का इफ्तिताह किया था। 27 दिसंबर को भी शोबा इंजीनियरिंग ने लाहौर ब्रिज तुसी मनसूबा को मुकम्मल ना किया। इसके बाद 18 फरवरी 2022 की डेडलाइन दी गई जिस पर यह मनसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। 15 जुलाई को तीसरी डेडलाइन पर भी ये मनसूबा शोबा इंजीनियरिंग की नाअहली की भीड़ चढ़ गया, जबकि 14 अगस्त को चौथी डेडलाइन दी गई, लेकिन तब भी ये मनसूबा अधूरा रहा। उसके बाद 15 सितंबर को लाहौर ब्रिज की तोसी का मनसूबे को मुकम्मल करने का ऐलान किया गया, लेकिन उस पर भी ये मनसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। मौजूदा सूरत हाल में LDA ने नए साल में इसकी मनसूबे की तकमील के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी। LDA की जानिब से मनसूबा बर वक्त मुकम्मल ना होने से फिरोजपुर रोड पर जो ट्रैफिक का बहाव है वो शदीद मुतासिर हो रहा है और जो ट्रैफिक रवानी है उसमें खलल हाल है। अब LDA इंतजामिया का कहना है कि नई डेडलाइन इसकी गुज़ा कर रहे हैं और जैसे ही रेलवे से इजाज़तनामा मिलता है उसके बाद मनसूबे पर दोबारा काम का आगाज करेंगे। जी ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया। पंजाब वर्कर्स एंड वेलफेयर को फंड्स ना मिले, WWF ने पंजाब का हिस्सा ना दिया। वर्कर्स की ग्रांट्स के केसेस रुक गए, मुख्तलिफ अजला की हज़ारों दरख्वास्तें इल्तवा का शिकार हैं। वर्कर्स के बच्चों की मैरिज ग्रांट्स भी जारी नहीं हुई। आतिफ परवेज से जानते हैं कि क्या तफसीलात हैं। जी आतिफ। के वर्कर वेलफेयर फंड को जो है वो फंड्स की कमी का सामना है, जिसके बाद वर्कर्स की जो ग्रांट्स की दरख्वास्तें थी वो रुक गई हैं और हज़ारों दरख्वास्तें जो मुख्तलिफ अजला से मेरिट के मुताबिक WWF को मौसूल हुई थी, जिन पर ग्रांट्स जारी होनी थी वो नहीं हो सकी। इनमें मैरिज ग्रांट्स है, डेथ ग्रांट्स है, उसके साथ साथ वर्कर्स के बच्चों को जो एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिलनी थी वो नहीं मिल सकी। और वर्कर्स के नुमाइंदों का कहना है कि फंड्स ना होने की वजह से उनको ग्रांट्स जारी नहीं हो रही हैं और ख़ास तौर पर बात की जाए तो एजुकेशनल ग्रांट्स जो हैं वो वर्कर्स के बच्चों को नहीं मिल रही है और इस हवाले से हज़ारों दरख्वास्तें जो हैं वो पेंडिंग है। वर्कर्स का कहना है कि वो जो WWF के दफ्तरों में जा रहे हैं वहाँ पर अपनी ग्रांट्स के हवाले से पूछ रहे हैं, लेकिन उनको कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया जा रहा। इसी तरीके से वर्कर्स के बच्चों की शादियों के लिए जो मैरिज ग्रांट्स हैं वो भी जारी नहीं हो रही और जो वर्कर्स फोत हुए हैं उनके अहल खाना को जो डेथ ग्रांट्स मिलनी थी वो भी नहीं मिल पा रही। पंजाब ने जो वफाक से हिस्सा मांगा था वो 8 अरब मांगा था, लेकिन उनको 3 अरब मिले और वो 3 अरब जो है वो भी खर्च हो चुका है। और अब सिर्फ और सिर्फ जो WWF के जो मुलाजमीन हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं दफातर में, उनको तनख्वाहें मिल रही हैं और स्कूलों को जो है तनख्वाहें जा रही हैं, लेकिन जो वर्कर्स के ग्रांट्स के दरख्वास्तें हैं उन पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। वर्कर्स की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर जो ग्रांट्स के केसेस हैं उनको हल किया जाए। शुक्रिया आतिफ परवेज, आपने तफसीलन अपडेट किया। अब आपको बताएं कि ट्रेन शेड्यूल बदस्तूर मुतासर कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली तमाम ट्रेनें घंटों ताख़ीर का शिकार। रहमान बाबा एक्सप्रेस 8 घंटे 50 मिनट ताख़ीर का शिकार। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। फ़हद अमीन से तफसीलात जान लेते हैं। फ़हद अमीन, आगाह कीजिएगा। रेलवे इंतजामिया के मुतअद्दिद दावों के बावजूद ट्रेनों का शेड्यूल जो है वो मामूल पर नहीं आ सका। धुंध जो है वो खत्म हो चुकी है, मगर इसके बावजूद कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली तमाम ही ट्रेनें आज भी घंटों ताकीद का शिकार है। कराची से आने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस आज 8 घंटे 50 मिनट की गैर मामूली ताकीद का शिकार है, जबकि इसी तरह पाक बिजनेस एक्सप्रेस 6 घंटे 45 मिनट और मिल्लत एक्सप्रेस 5 घंटे 45 मिनट लेट है। कराची एक्सप्रेस 5 घंटे 30 मिनट, कराची से आने वाली तेजगाम एक्सप्रेस 5 घंटे 25 मिनट और पाकिस्तान एक्सप्रेस 5 घंटे 15 मिनट की ताकीद से आ रही है। कराक्रम एक्सप्रेस 4 घंटे 20 मिनट और जाफर एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट की ताकीद का शिकार है। इसी तरह खैबर मेल एक्सप्रेस 3 घंटे, इलामा इकबाल एक्सप्रेस 2 घंटे 50 मिनट और फरीद एक्सप्रेस 1 घंटा 40 मिनट लेट है। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और शदीद सर्द मौसम में मुसाफिर जो है वो घंटों रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का इंतजार करने पर मजबूर है। जी ठीक है फ़हद अमीन, आपका शुक्रिया। शहर में पोलियो के खतरात बदस्तूर मौजूद हैं। साल के पहले महीने में दूसरी बार पोलियो के माहौलियाती नमूने मस्बत आए। CEO हेल्थ लाहौर डॉक्टर शुएब गरमानी का कहना है कि 13 फरवरी से लाहौर डिवीजन में पोलियो मुहिम शुरू की जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल।
شہر میں پولیو کے خطرات بدستور موجود ہیں، جو کہ رواں ماہ میں 2 دفعہ پولیو کے جو ماحولیاتی نمونے ہیں یہ مثبت آئے ہیں، جس کی وجہ سے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے شہر کے جو مضافاتی علاقے ہیں لاہور سمیت یہاں پہ جو پولیو مہم ایک دفعہ پھر سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ سی او ہیلتھ لاہور ڈاکٹر شعیب گرمانی موجود ہیں۔ تو لاہور میں بار بار جو مثبت ہیں ماحولیاتی نمونے وہ آ رہے ہیں، اور اس کی روک تھام کے لیے اب کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں؟ جو ابھی پولیو کمپین گزری ہے اس میں بھی ہم نے جو ہے وہ 21 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے ہیں۔ لاہور میں ڈیلی بہت زیادہ بسیز، بہت زیادہ لوگ اپنا خیبر پختونخوا سے، پشاور سے، وزیرستان سائڈ سے اور افغانستان سے ہمارے پاس آتے ہیں۔ اور اسی طرح جو لاسٹ ہمارے پاس پولیو کا سیمپل جو ہے وہ ہم نے لیتے ہیں، اس کا انوائرمنٹل سیمپل، وہ ہمارے پاس پازیٹیو آ گیا تھا۔ جب ہم نے اس کو چیک کیا تو اس کا تعلق افغانستان کے ایک سٹی ہے ننگرہار، اس سے ان کا جو ہے وہ تعلق نکلا ہے۔ تو ہم نے اس کے بعد پولیو کمپین کرائی ہے، تو انشاءاللہ ایک پولیو کمپین میں ہم نے 104% بچوں کو جو ہے جو ہمارا ٹارگٹ تھا اس کے 4% ہم اوپر چلے گئے ہیں۔ تو آپ لوگ پولیو ٹیمز کے ساتھ تعاون کریں، اپنے بچوں کو پولیو کے ڈراپس پلائیں تاکہ ہمارے بچے جو ہے ہماری نیو نسل اس موذی بیماری سے بچ سکیں۔ جی بالکل، جس طرح کہ آپ نے سنا کہ یہ جو پولیو کے ماحولیاتی نمونے مثبت آ رہے ہیں، ان کی روک تھام کے لیے 13 فروری سے لاہور بھر میں جو پولیو مہم شروع کی جا رہی ہے۔ داخلی خارجی راستوں پر بھی ٹیمیں کھڑی کی جائیں گی تاکہ جو بچے دوسرے صوبوں سے یا ملکوں سے آتے ہیں ان کو بھی پولیو کے ڈراپس کے جو قطرے ہیں یہ پلائے جائیں تاکہ لاہور سمیت پنجاب بھر کو اور پاکستان بھر کو پولیو فری بنایا جا سکے۔ جی شکریہ محمد بلال۔ ڈی سی لاہور کی زیر صدارت کھلی کچہری کا انعقاد۔ کھلی کچہری میں آج 20 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں۔ ڈی سی لاہور محمد علی نے موقع پر درخواستوں کو نپٹا دیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمران اکبر سے۔ عمران اکبر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، ڈپٹی کمشنر آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد روزانہ کیا جا رہا ہے، اور اسی سلسلے میں ڈی سی لاہور محمد علی نے آج کھلی کچہری لگائی ہے، اور کھلی کچہری میں 20 سے زائد شاعری اور انہوں نے اپنی درخواستیں جو ہیں وہ مضمون کروائیں، جس پر ڈی سی لاہور نے موقع پر ہی فیصلے لیتے ہوئے درخواستوں کو نپٹا دیا گیا ہے، اور اس وجہ سے متعلقہ افسران کو بھی سائلنگ کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ڈی سی لاہور کا کہنا ہے کہ سائلنگ کے مسائل کو حل کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ کھلی کچہری روزانہ کی بنیاد پر صبح 10 سے 11 بجے تک لگائی جاتی ہے۔ شہری کھلی کچہری میں ضرور آئیں اور اپنے مسائل سے آگاہ کریں تاکہ ہر وقت ان کے مسائل کو حل کیا جا سکے، اور اس والے سے تمام اسسٹنٹ کمشنر بھی جو ہیں وہ اپنے اپنے آفیسز میں بیٹھیں اور 1 گھنٹہ لازمی سائلنگ کے مسائل سنیں اور ان کی جو شکایت ہیں ان کا فوری طور پر ازالہ کروائیں۔ جی ٹھیک ہے عمران، آپ کا شکریہ۔ ٹریفک کے مسائل نگران وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی نے اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں متعلقہ حکام شریک ہوئے۔ ٹریفک مسائل کے تدارک کے لیے مختلف اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ شہر میں ٹریفک کے مسائل بارے نگران وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی نے اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اجلاس سے متعلقہ حکام شریک ہوں گے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں لیاقت علی سے۔ لیاقت علی، آگاہ کیجیے گا اس اجلاس کے حوالے سے۔ آج بالکل لاہور شہر میں ٹریفک جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور ہر وقت ٹریفک یا تو جام رہتی ہے یا انتہائی سلو رہتی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ تو اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی نے آج اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کیا ہے، جس میں متعلقہ حکام جو ہیں وہ شریک ہوں گے اور جائزہ لیا جائے گا کہ لاہور میں ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے، اور جو لاہور شہر کو ٹریفک کے مسائل کا سامنا ہے اس کے حل کے لیے کیا حکمت عملی جو ہے وہ دیرپا بنائی جا سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے لیاقت علی، آپ کا شکریہ۔